Our today's podcast is going to be on a very important subject, financial literacy. Actually, lack of financial literacy hurts us, and that's why it becomes very important. And फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम जानने के लिए हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट हैं मेजर जनरल SQ अहमद. जनरल अहमद, welcome to our podcast. Thank you very much, sir. Thank you. General Ahmed, you have served in the army for almost 38 years, is it? Yes. That's fantastic. In fact, our association has been more than 3 decades long. Oh, yes, of course. We served together in UN Mission Somalia. And very important thing which I'd like to share with our viewers, which happened with us, both of us. In fact, all of us who were there in that mission, we were earning good money, dollars. We had NRI accounts during those period of our UN mission, and we were there for almost 15 months. So we had a surplus money, and we invested. And we invested. Our investment was in NRI stocks. Is it? Actually, that time we had hardly any idea. So anybody who approached us, so we said, "Chalo, let's try this investment." As I recall, most of us. Yes, but one portfolio Yeah. was NRI stocks. also. Yeah, something like that. Yes, Yeah. something like that. Yes. And I think that was 93, 94, 95 period. Yeah, yeah. And that was the time Harshad Mehta scam happened. And most of us lost a lot of money. And thereafter I said, तौबा तौबा, अब मैं स्टॉक से इन्वेस्टमेंट से तो दूर रहूँगा. आई केम बैक लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू. हमारी टेंडेंसी क्या है, हम सेविंग्स में चले जाते हैं और सोचते हैं बस सेव कर लिया काफ़ी है. बट यू वेंचर्ड टू दिस, आपने हार नहीं मानी और आपने जो है इस पर बहुत काम किया और उसका फ़ायदा हम आज इस पॉडकास्ट में लेंगे. Thank you. फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आप कैसे शुरू करना चाहेंगे हम डरे हुए लोगों के लिए? So, firstly, sir, thank you very much for inviting me to your podcast and giving me this platform to air my views on this. It's a subject for which I'm very passionate, and I want to tell all the viewers who are seeing this that I'm not trained myself in financial literacy as such. I've not done any financial management courses or any capsules and all that, other than what we have been taught in the army. हम हर कोर्स के अंदर एक फाइनेंशियल लेग होता था. That was more to do with how to invest in, now how to use the public money. So that we have done. But मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा एक पर्सनल पैशन हुआ करता था. आजकल उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, प्रॉब्लली हम अपने टाइम पे उसे सेविंग्स कहा करते थे कि वी विल सेव सम मनी, पोर्शन ऑफ द मनी एंड पुट इट इन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दैट टाइम. पहले FD यूज्ड टू बी एट 12%, LIC policies, money back policies and other attractive policies were available at 10-11%. अगर और पीछे जाऊं मैं उस समय किसान विकास पत्र used to be there. That was available for about in 5.5 years they used to double, so around 12%, 12-13%. So these were the instruments that were available. Our own DSOP was 12% in some time when we all joined. So 12% was a good rate of return. So it was a happy-go-lucky time. I said, one thing I'd like to ask you, when those kind of interest we were getting, even inflation was high. so inflation our was. saving. In fact, most of the time, saving actually doesn't cater for or doesn't beat the inflation. Who had the knowledge? That's what. Exactly. So we were all happy that okay 12% मिल रहा है, 5 years में double हो जाएगा. Correct. So we were attracted towards that, and we were actually just about beating the inflation because inflation figures used to be 8 to 12% depending on what parameters. Now we understand inflation much better. Financial literacy in the society has grown much higher than what we started 40 years back. So my passion was there. What I wanted to tell, how I got into it, was my passion. And it was even before going to Somalia, from our paltry pay that we used to get, I used to save some money and I used to invest in the share market, because somebody told me that if you want to make a decent money, then this is the route.
तो आप डरे नहीं, मतलब बेसिकली हम लोग डर के मारे दोबारा शेयर मार्केट में घुसे? नहीं, मैं उस डिबैकल से पहले की बात कर रहा हूँ, बिफोर गोइंग टू सोमालिया. आई इन्वेस्टेड इन 91, 92 ऑल्सो. ओके. Yes, and I was already investing. मतलब एक मजेदार बात यह है कि I had so much of confidence in that market. That confidence came purely from seeing papers and listening to people. There was no formal education. Somebody said if you put a part of money here, bank gives you 10-12% in FDs. This may give you even more. I said, why not try this? Because nobody was teaching us. Nobody was telling us. There were no institution, no any program that was talking about it. One thing I'll have to stop here. There are apps these days. There are apps these days, trading apps. So I will just halt you, sir. You're jumping the gun. We are. I'm just talking of nibbling of investment. Trading is at a much higher level. I'll come to that. I'll address that issue a little later in the podcast. So what I want to tell you was we invested in that. I was investing in that. I had little knowledge. And in those days, the shares were not happening through the, like you mentioned, apps. So there was no Zerodha, there was no Angel One, there was no Grow. So we had to go. There were no demat accounts. There were physical shares, paper shares. Newspaper में देख के. Paper, the shares itself were in the paper format. So you used to go to the broker physically, take the share from him. He will then apply to the consultancy, Carvey, and all those big brokers where your name will go. Then the stamp papers will come, share papers with your name pasted on it, and that became your holding of the shares in that particular account. So I'm talking of those days. Okay. And I had a strong feeling that yes, there is some sense in this. Index had just started at that time, somewhere in those days. So that's how I was doing. And what the incident you are telling is when we went to Somalia, we had a lot of money. When we came back, we had money to spare. See, unless you have money to spare, you can't get into all this. So we had the money to spare, and then there were brokers who were in the market. They thought these people have come. They got the details from the banks, and NRI accounts were there. So they said these NRI will have a lot of money. इनको कुछ बताते हैं. So they all actually tried to tell us something which we all of us hardly understood. Some ventured, some didn't venture. Like since I was having little knowledge, I didn't fall into that trap as much. I said, "Chalo, ठीक है, let me try this also." But then finally, I didn't go there. I don't want to name the company which we because it becomes specific to that particular company. So I had almost applied in a pre-IPO of that company at a much cheaper price. But then I realized, no, I don't think we have grown this big. Let's withdraw it and keep it a simple investment. Probably that's where I didn't burn my fingers as much as others did. And when Harshad Mehta happened, I was also invested. Yes, my shares went down. And actually, that kind of a thing told me if it has gone down, some one man has manipulated it, or which we learned much later. At that time, one was not understanding. So I said there is a chance and scope of this rectification happening in Indian market, and maybe we will get our money back. So that kept my confidence alive, and I kept investing, and I didn't get out of the market, though the amount was very meager because priorities were different at that time. Kids were growing, you had to buy a house, everything was to start. So in this, investment was very minor, but investment continued. And I'll tell you one story maybe subsequently once we go through the podcast, what exactly happened to some of my shares, which I invested in those times. Maybe a little later as we discuss, so you may go through the next question. That's how actually I got initiated into the market. What would be your advice to people, those who are starting their careers, beginners? Yeah. So, my forte now is that I am a mentor. I advise people. I go to the education institutions, my own institutions. Whatever I did not get, I try to give it back to the society. It's absolutely a service that I provide, and with the aim that जो guidance हमें नहीं मिली, वो इन बच्चों को मिलनी चाहिए. Those are youngsters of today. Yeah. So I've taken some financial management lectures. I've been invited, and I've been telling them that this is not gospel, but I'm telling them techniques of investment, what you should do. Invest, you must. Now today, a class 1 officer or anybody, even a youngster who has gone into the civil domain, he earns about 20 to 25,000 to start with, goes to 40,000 in a year or two, and generally around 50,000. Everybody after 2 years earns about 50,000. If there's a couple, both of them earn 50-50 each. So they have 1 lakh with them. So if you break down their account for what they're spending,
what they are not spending. My formula is very simple, that you start with 20% of saving, increase it to 30, and as you mature, when you have about a couple saving coming in, go to 40%. That's investing your own money that you get. So if you earn 20,000 rupees today, 20% will take out 4,000 rupees, which is nothing. I mean, your are children who are just starting getting internship, they get this kind of a money. 4,000 उसने निकाल लिया, इसका करना क्या? Now you have that money separately. The first thing is that if you don't know what to do, simple bank in the RD में डाल, recurring deposit. Let the money get accumulate. First you get into the habit कि I can take out this 4,000 rupees every month without fail. You get that confidence after 3, 4, 5 months. By then bank is giving you RD about a 3-4% interest. It's all right, but you got into the habit and you got that confidence that this I can do. Once you get that kind of a money and that kind of a habit, start very, very simple. Invest into mutual funds. That's the most easy way of investment that anybody can start without any knowledge. It doesn't have to go to anyone. Don't get stuck with any broker. Nothing. Open your bank, whichever bank you are using, HDFC Bank, ICICI Bank, any bank, what Axis Bank. Every bank has got one icon today of investment. You go to that, you will have a drop down menu of many mutual funds. You just select 3 good mutual funds. Today's youngster who goes up to that level can easily find out how to get into that mutual fund. So there are very many varieties. Go simple. Any mutual fund that you take, large, mid, small cap, on a long run will give you 10 to 12% of interest today, with the inflation being at 6 to 7%. So you are gaining 3 to 4% every year. This is to start with, I am telling you. So आप 4,000 rupees लीजिए या 5,000 rupees लीजिए, go to your own bank, you don't have to ask anyone. And if you want to educate more, just open the YouTube channel, search for some mutual fund videos. You see 3-4 videos, you will become wise enough. And once you've understood this game, start investing. If you don't get the confidence, take help of a financial advisor. There are many financial advisors available now who are working. There are many financial companies. I don't want to name a specific one, otherwise it would seem that I am trying to promote them. That's not the case. But there are many financial companies. There are AMCs. So go to those AMCs and tell them I want this fund. They will help you to get that fund. Once you start the process, take it. I generally I take the fund to 10 years, 20 years SIP. I can stop at any time. So why should I not enjoy the benefit of long-term compounding? So I said you start with 4,000 and imagine we have lived 40 years earning life, both of us. When we started, we used to get what pay? Hardly any pay, 1,000, 2,000 rupees. Correct. And at that time, saving 300 was a big, if I go by the same example, 2,000 rupees, 40%, 20% will be 400 rupees or whatever, 800 rupees. 800 at that time was a tough ask, very tough ask. But suppose you had done the SIP for 40 years, 800 rupees. What was 800 rupees after 10 years? Nothing. But somebody can just go to the formula and put in a SIP formula from the net and put 800 rupees at 12%, which is the lowest you get in a mutual fund over a long run. You see what amount it accumulates to, an 800 rupees, which is nothing. Incidentally, I was motivating both my children. They are 5 years apart. So I told them that the elder one has lost out because he has not started this, despite my telling them. The younger one, I said, now you should start today. Now both the brothers start today an SIP of say 20,000-30,000 rupees per month as per their whatever they are earning. I said by the time they become 55 or 60 of years of age, one guy will be richer by few 20-30 lakhs, depending on the amount they are investing. And if the elder brother has to catch up because he has lost 5 years, he has to invest double the amount for that period. That is the art of starting early. So please, all those who are listening to me, whatever age you are in, 20, 21, you got your first job, 20% put it, then you get your increment of 10 to 15%, or you get a promotion, increase your investment by 10%. जनरल अहमद, आपने यंगस्टर्स के लिए और जो लोग कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा बता दिया, क्योंकि एक फ़र्क तो है उनमें और जो मिड कैरियर के लोग हैं और जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं. मैं इनको एक्चुअली टोटल 3 कैटेगरी समझता हूँ.
तो जो लोग स्टार्ट करते हैं, कह रहे हैं उनके पास में जो है एक मुश्त फंड नहीं होता है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। तो वो ऐसी कोई चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जहाँ पे कि उनको जो है डाउन पेमेंट ज़्यादा हो या एक साथ खर्चा ज़्यादा करना पड़ जाए। तो ये तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने एसआईपी किया, फंड्स खरीदे, जो भी है ट्रिकलिंग अमाउंट जो भी उनके पास आ रहा है करते करते वो एंड दे बिल्डअप। ठीक है, और जैसे आपने एडवाइस दिया वो तो उस हिसाब से बिल्डअप कर लेंगे तो कुछ न कुछ उस पैसे का कर सकते हैं। मुझे मिड कैरियर वाले लोगों के लिए एडवाइस चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग तो दे मस्ट हैव मिस्ड द बस, करेक्ट। तो उनके पास में जो है क्या ऑप्शन रहते हैं और उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या एडवाइस आती ये बड़ा अच्छा सवाल है। सो व्हेन यू से मिस द बस, इसका मतलब ये है कि शायद वो चूक गए इन्वेस्टमेंट करने से। पर मेरे ख्याल से इंडिया की जो मेंटालिटी है, है? हमारे जो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनके अंदर सेविंग बाय डिफॉल्ट है, हाँ, सेविंग की तो बाय डिफॉल्ट है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह बस मिस कर गए हैं, तो उन्होंने कुछ तो सेव किया ही होगा। करेक्ट। सब अपने अपने आप को खंगाल सकते हैं कि मैंने क्या, उन्होंने सेव करके किसी ने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया होगा, गाड़ियां ले ली होंगी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑब्लिक कार, डिपेंडिंग ऑन किस वो स्टेटस में है। किसी ने कुछ घर बना लिए होंगे, बिकॉज वो भी एक बड़ी ज़रूरत होती है। जनरली मैंने देखा है कि 10-20 साल सर्विस होने तक लोग धीरे धीरे, हमारा सबसे पहला ध्यान घर में जाता है, या जो लोग गांव को बिलोंग करते हैं, खेती के लिए लैंड वैंड ले लेते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे साउथ इंडिया के लोग हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, बिकॉज उनको गोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सबने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा। तो ये कहना कि कंप्लीटली मिस द बस भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा, लेकिन यस, नहीं, उसको उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे क्योंकि वो तो सेविंग है, दैट सेविंग इज नॉट अर्निंग। नहीं, अगर वो सेविंग इन्होंने कुछ इस टाइप के एसेट्स में की है, हम्म। अगर वो सेविंग सिर्फ एफडी में रखी है, तो मैं कहूंगा यस, दे हैव मिस्ड द बस। लेकिन अगर उसने उस सेविंग को सिर्फ एफडी में न रखे, एफडी भी जरूरी है फॉर इमरजेंसी, सिर्फ एफडी में न रखे, मान लीजिए उन्होंने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है लैंड में, प्लॉट में, गोल्ड में, किसी और इस तरह की चीज में, फिर भी दे आर मच बेटर ऑफ। बिकॉज जो कीमतें लैंड की आज से 20 साल पहले थी, वो आज नहीं मिलेंगी। तो अगर किसी ने बाय डिफॉल्ट या सोच करके वो खरीद ली है, तो उसका पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट हो गया होगा। मैं जब घर और लैंड में कहता हूं, घर इज नेसेसिटी फॉर स्टेइंग, और जमीन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि आपको एक रूफ चाहिए ये तो रहने का वाला जो घर होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट उसके अलावा एक दूसरा घर होता है। तो कई बार मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं, सर घर लें या लैंड लें? मैं कहता हूं जमीन लीजिए आप, इज बेटर एंड सेफर इन्वेस्टमेंट देन घर, बिकॉज घर डेप्रिशिएट करता है, लैंड एप्रिशिएट करती है, दैट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने गोल्ड भी ले लिया है, देखिए पिछले साल क्या गोल्ड में रन आया। मैंने एक पोस्ट लिखी थी अपने लिंक्डइन चैनल पे लास्ट ईयर अराउंड द सेम टाइम, जब गोल्ड 71,000 पे था, लोग हाहाकार मचा रहे थे तब, 71,000 का सोना हो गया, क्या करें। तो पीपल केम टू मी, तो मैंने एक छोटी सी पोस्ट लिखी गोल्ड की हिस्ट्री को ट्रैक करते हुए, क्योंकि गोल्ड हमारे पेरेंट्स ने, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, उनके टाइम पे गोल्ड 100 रुपीज, 160 रुपीज का होता था, वहां से 71 इज अ बिग जंप, यस डेफिनेटली। बट उनका एक जो प्रोग्रेस ग्राफ है, अगर आप गोल्ड का देखें, स्टडी है, दैट्स अ गुड हेज मैनेजमेंट। अपना पैसा हेज कर दिया, गोल्ड में रखा हुआ, कहीं डूबेगा नहीं, कभी नहीं डूबेगा, वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन गोल्ड रहेगा, फिजिकल गोल्ड हमेशा रहेगा, क्योंकि वो आपके पोजेशन में है, आपके पास रखा हुआ है, और उसकी कीमत जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड को हम स्टैंडर्ड मानेंगे तब तक रहेगी। आगे चल के अगर डिजिटल स्टैंडर्ड्स हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, गोल्ड कभी नहीं जाएगा। देख, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हमेशा होना चाहिए। तो आप ये देखिए, नहीं मैं मिड पे आऊंगा, पहले आप मैं एक इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ कि जो पिछली बार 71,000 पे सोना था आज से एक साल पहले, टुडे इट इज एट 110, 115, मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है। अब सोचिए 50,000 रुपीज इट हैज ग्रोन, विच इज ऑलमोस्ट 60-70%। किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसे हो जाएगा। तो ये सब इन्वेस्टमेंट जो उन लोगों ने, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि क्या दे बस मिस कर गए, तो अगर इस टाइप की जाने अनजाने में या सोच समझ के अगर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की है, तो उन्होंने बस नहीं मिस की है। लेकिन अब उन्हें करना क्या चाहिए? अब डेफिनेटली, बिकॉज ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इतने बढ़ गए हैं कि अगर उन्होंने अब भी उससे सीखा नहीं और इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉपरली अगर नहीं गए, तो शायद वो बस मिस कर जाएंगे। वो ये जो चल रहा है आजकल, जैसे मार्केट ट्रेंड है, कभी धड़ाम से गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ट्रंप ने कुछ बोला, कभी यहाँ की कुछ चीज़ें हो गई,
तो ये तो बड़ा वोलेटाइल मार्केट है, इसमें इसमें कोई एंट्री कैसे करेगा इस समय, और खासतौर से जो मिड एज वाले अब लोग ये सवाल आपको तो नहीं पूछना चाहिए, आपने 92 93 का हर्षद मेहता फॉल देखा है। बिल्कुल। अब आपको मैं गिनाऊं, मतलब ऐसे बहुत आप देखें लोग गिनाते हैं। हर्षद मेहता का केस आया 93 94 में, फिर उसके 6-7-8 साल बाद, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, अब्दुल करीम तेलगी का कोई हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम आया था, मार्केट में आया था, मार्केट इफेक्ट हुई थी। अब और थोड़ा हम करीब आए, जो आजकल के लोग सुन रहे हैं, 2008 का लेमन ब्रदर्स का फॉल आया था, बहुत भयानक फॉल था, राइट। 2012 में भी आया था, कोविड, जस्ट इमेजिन, वहां तो लोगों की जिंदगी जीने का ही सवाल नहीं था, काम धंधे बंद हो गए सर। वो भी आया, लेकिन मार्केट ने उसको भी तो ये जो ट्रम्प का टैरिफ का ये बवाल है, ये चलता। सो इज मार्केट गोइंग टू बी स्मूथ? नो, कभी नहीं होगी, उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लगा रहेगा, वो कई वैरायटीज होती हैं। लेकिन आप मार्केट की ग्रोथ को देखिए, सेंसेक्स देखिए आप, जब वो सेंसेक्स शुरू हुआ तो कहाँ पे था, अभी सेंसेक्स में रिटर्न 200%, 200 टाइम्स टाइप ऑफ रिटर्न्स हो गए। इसलिए उन लोगों को भी डरना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जो हमारी सेबी कहती है, जो हमारी एक्सचेंजेस कहती हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। और अगर आपको वो समझ नहीं है, तो आजकल इतने ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आप प्लीज उनकी एडवाइस लीजिए 100%। आप इन्फ्लुएंसर्स के पास मत जाइए, आप एडवाइजर जो हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनके पास जाइए, उनकी आप डिटेल आप उसमें निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, गूगल पे। कभी कभी आप बैंक में जाते हैं, आप XYZ किसी बैंक में आपका अकाउंट होगा, वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई बैठा होता है, वो आपको जो है कुछ बेच देता है, वो तो एक तो उनकी वो भी एडवाइजर बन जाते हैं, तो उनकी बात मानी चाहिए, अनलेस वो एक प्रॉपर एडवाइजर हो, उनकी आप बात ऐसे मानिए कि आपको एक नॉलेज दे रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करिए। वेदर यू शुड एक्ट ऑन दैट इज योर डिसीजन। और मैं कहता हूं कि जब आपका अपना हार्ड अर्न मनी है, आप उसको पैसा लगाने, सिंपल सी बात सोचिए, आप एक कार खरीदने जाते हैं मार्केट में, कार चले, कार बहुत बड़ी चीज होगी, आप एक टीवी खरीदने जाते हैं जो छोटी चीज है, कितनी रिसर्च करते हैं, बिल्कुल, आप उसका दाम पूछते हैं, ये पूछते हैं कौन सा टीवी है, क्या वारंटी है, क्या वो मुझे देगा, 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए इतना पैसा लगाते हैं। और आप अपने बुढ़ापे के लिए, अपने फ्यूचर के इंवेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ बैंक में किसी ने बोल दिया आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये तो गलत बात है ना, इट्स नॉट करेक्ट। सो आप मैंने बहुत लोगों को देखा है, और इनफैक्ट मैं भी इसमें फंसा हूँ, अभी वहाँ गए, पता लगा नहीं, वो शायद रिलेटेड चीज बेच रहे हैं वो, और हमें तो लगा कि शायद फायदा होगा, उसमें देखा कि वो तो जिस सेक्शन के अंडर में जो बचना था, उसमें तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो वो बेकार हो जाता है। देखिए, अगर आप इंश्योरेंस की बात छेड़ी, बहुत अच्छी चीज़ है, इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको अपना इंश्योरेंस चाहिए, आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट आज की लाइफ में। जिसके पास ये दो चीज़ नहीं है, मैं सबसे पहले बोलूँगा कि सबसे पहले अपना इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस कराएं, आपके अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट के जितना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की सोचें, बिकॉज वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट है, जिसमें कि किसको कितना इंश्योरेंस कहाँ चाहिए, वो सब हम मैंने इसके ऊपर एक अलग से बात की थी एक एपिसोड में, आप करिएगा, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, उसको अभी छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ, क्योंकि लोगों को मालूम चल गया है कि इंश्योरेंस के नाम पे लोग पैसा लगा देते हैं, बिकॉज सब कहते हैं इंश्योरेंस करनी चाहिए, तो कुछ मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बन गए जो नाम रखते हैं इंश्योरेंस, उसमें 20-30 उनके परसेंटेज होते हैं बैक एंड पे, अगर आप जाके देखें 20-30-40% इंश्योरेंस में होता है, कुछ डेट में होता है, कुछ स्टॉक्स में होता है। तो आपने एक खिचड़ी बना दी है इंश्योरेंस के नाम पे, आपने 1 लाख रुपए दिया, बोले आपको एक्सीडेंटल डेथ के 10 लाख रुपए, 10 टाइम इंश्योरेंस हो गया। ये कोई इंश्योरेंस है? आप 1 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जी नॉर्मल, आपके महीने की, आप मेरे ख्याल से 500 रुपए की भी एक किस्त नहीं आएगी, एंड यू विल गेट करोड़ रुपीज का इंश्योरेंस। एग्जैक्टली, तो सो आप यही चीज मैं यस के लिए सवाल पूछा था कि अक्सर लोग आपको जाते हैं बैंक में या आपके घर आ जाते हैं, कोई कॉल करके आ जाता है और ये सब चीजें, लुभाने वाली चीजें दे देते हैं, और लोग जो है, आप सुनिए, सभी को आप समझने की कोशिश, वो ना सोच कर समझ कर आप समझिए, और आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगेन आई विल टेल, आप प्लीज वॉक इन टू अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, हो सकता है वो आपसे कुछ फीस ले, आप उसको दीजिए, बनता है, फीस तो बनता है, और उससे आप एडवाइस लीजिए, और वो एडवाइस ही नहीं लेगा, वो आपको क्वार्टरली अपडेट भी देगा कि सर आपको ये एडवाइस किया था, ये आपका प्रॉफिट है, ये लॉस है, ऐसे हो रहा है, आगे बताइए, वी विल गाइड यू एंड टेक यू थ्रू, और आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इससे अच्छा कि आप किसी पड़ोसी से पूछें या किसी ऐसे आदमी से पूछें जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऑल इन्फ्लुएंस आप सुनिए, सबकी करिए अपनी। तो कहने का मतलब है जो मिड कैरियर के लोग हैं,
उनको अपनी हार्ड एंड मनी को सोच समझ करके सही जगह पर लगाना चाहिए। बिल्कुल। और हैरे गहरे नथु से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं आपको एक चीज यहाँ उनके लिए एडवाइस करना चाहता हूँ। मान लीजिए मिड कैरियर मीन्स उनकी 10-20 साल की सर्विस हो चुकी है, दैट मीन्स वो करीब 35-40 ईयर्स की एज पे मतलब पहुंच गए। जितनी नौकरी कर चुके हैं शायद उतनी नौकरी हाँ, तो करीब वो 40 साल की एज पे जानी पहुंच चाहिए। चुके हैं। अब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, हायर एजुकेशन, शादीशुदा, आगे चल के घर बंगला अगर उन्होंने नहीं लिया है तो शायद लेना होगा, दूसरी गाड़ी, हॉलिडे अब्रॉड, इस टाइप की रिक्वायरमेंट सबकी आजकल आई जाती है। तो हर एक चीज को एक टारगेट बनाइए कि मेरा पहला टारगेट, दूसरा टाइम वाइज, कि मुझे अगर बच्चों को हायर एजुकेशन करनी है तो क्या होगा। ये आम चीजें सबको पता है। एक्चुअली ये तो जो स्टार्टर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं कैरियर उनके लिए भी है, ये हर एक के long लिए। term के लिए जो जो जिन्होंने अब तक नहीं की है मिड कैरियर वाले उनको भी करनी है। उसके बाद हम आएंगे अभी पोस्ट रिटायरमेंट सबको करनी। तो ये एक टारगेट बना करके जो भी आपके टारगेट्स अभी आने वाले हैं उसके हिसाब से एक प्रॉपर एसआईपी करिए। कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट्स आर वोलेटाइल, आई डोंट एडवाइज देम यू गो डायरेक्टली। ये सबके बस की बात नहीं है। आप अगर उसमें जा रहे हैं तो प्लीज गो विद अ प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस। लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किए जाते हैं। हर म्यूचुअल फंड के अंदर 40-50 शेयर्स होते हैं, डिपेंडिंग। एक मैं कॉमन बता रहा हूँ, किसी में 70 भी होते हैं, किसी में 30 भी होते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत टाइप्स के हैं, बहुत ज्यादा टाइप्स के हैं। आप देखिए आपको किस म्यूचुअल फंड की रिक्वायरमेंट है। कुछ म्यूचुअल फंड तो ऐसे भी होते हैं जो ओवरनाइट होते हैं, आर्बिट्राज होते हैं, आप उन पैसे को आर्बिट्राज कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो कि बड़े स्मॉल स्मॉल टाइम के लिए होते हैं म्यूचुअल फंड्स। आपने छोटे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन इस टाइप के लिए पैसा लगाया, आपने लगाया उसमें। ओवरनाइट फंड्स होते हैं, आपने आज पैसा पार्क किया, कल निकाल लिया। दे आर म्यूचुअल फंड्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 40-50 कंपनीज, सारी थोड़ी डूब जाएंगी एक साथ, एंड दे आर प्रोफेशनली मैनेज्ड। सो आई थिंक दे आर रीजनेबली सेफ। भाई मार्केट में तो कभी भी फॉल आ सकता है। जब कोविड आया तो एक दिन में कितना मार्केट गिर गया था। रिस्क में बिना रिस्क के तो ये है ही नहीं। बिल्कुल, ठीक है, बिना रिस्क के तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। हायर दिस रिस्क हायर द रिटर्न। एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो ये उनको करना चाहिए एक। और अदरवाइज बड़ा सिंपल, अगर किसी के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं तो 3 चीज कहता हूं भैया। एक, आप लार्ज कैप फंड ले लीजिए, एक स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, एक मल्टी कैप या मिड कैप फंड ले लीजिए। बड़ा सिंपल, 3 चीज याद रहती है, लार्ज, मिड, स्मॉल, बस एक एक फंड ले लो। 3 आपने वर्ड यूज कर दिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो समझ में नहीं आया ये क्या। ओके। तो जैसे कि मार्केट में सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स इज अ ग्रुप ऑफ 30 टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, उसमें सेंसेक्स होता है। एक एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी 50 जिसे कहते हैं, वो टॉप 50 कंपनीज होती है। व्हेन आई से टॉप 50 कंपनीज मींस हर कंपनी का एक मार्केट कैपिटल होता है। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, उसका एक मार्केट कैपिटल है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट समथिंग लाइक 10 लाख करोड़। रिलायंस उसका 12 लाख करोड़। मतलब ये आपस में डोंट गो बाय फिगर्स, बट दीज आर बिग कंपनीज, उनके लैक्स ऑफ करोड़ में मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। लार्ज कैप, ये जो टॉप 30 हैं ये सेंसेक्स में चली जाएंगी। अगर आपके मार्केट वैल्यू शेयर के ऊपर नीचे हुई, अगर आपका मार्केट कोई और नीचे वाली कंपनी ऊपर, अभी मार्केट में एडजस्टमेंट हुई है, अभी इस महीने से आज खत्म हो गया मार्केट, परसों से जब आप देखेंगे तो लार्ज और मिड कैप में और स्मॉल कैप में एडजस्टमेंट हुई है, बिकॉज उनके शेयर मार्केट वैल्यूज ऊपर नीचे हुए हैं। और तो वो कुछ शेयर्स मार्केट में चले जाते हैं लार्ज कैप के अंदर, कुछ निकल आते हैं सेंसेक्स में से। जो लार्ज वाले थे वो मिड में आ जाएंगे। हाँ, वो मिड में आ जाएंगे, मिड वाले लार्ज में। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो हमारी लार्ज कैप है, टॉप 100। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज है मार्केट वैल्यूएशन, वो हमारी मिड कैप है। उनके कैपिटल इनसे कम है। सो टॉप 100 हुआ, मान लीजिए हम 1000 रुपीज का मार्केट कैप लगाते हैं, 1000 से लेके मान लीजिए 900 रुपए तक 100 कंपनीज आ गई, तो आपका लार्ज कैप वो 900 रुपए तक हो गया। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, डोंट कंफ्यूज विद मार्केट कैप। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज है 900 रुपए के नीचे, यानी कि जहां लार्ज कैप खत्म होता है, जो भी मार्केट कैप पे खत्म हुआ, फ्यू लाख करोड़ पे जहां पर भी खत्म हुआ, उसके नीचे से लेकर के जो नेक्स्ट 150 कंपनीज है वो हो गई हमारी मिड कैप। यानी कि टोटल 250 कंपनियों में लार्ज मिड कैप खत्म हो जाता है। उसके बाकी जितनी बची हैं स्मॉल कैप, अगर वहां पे हैं, दे आर ऑल स्मॉल कैप। हाँ, वो स्मॉल कैप है। यस। तो रिटर्न इन तीनों में विज़ कैसा होता है, मतलब जो है। अब देखिए ऐसा है कि लार्ज कैप बहुत बड़ी कंपनी, अब आप खुद सोचिए कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलेशन टेंस ऑफ लैक्स करोड़ में है, उसको अपने मार्केट को डबल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।
वो नॉर्मली नहीं होता है, वो धीरे धीरे चलती है, मतलब सो लार्ज कैप्स बहुत धीरे चलती हैं। लेकिन श्योर है, assured है, मतलब काइंड ऑफ assured। नहीं, मैं वो अश्योर्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मार्केट में कुछ भी अश्योर्ड नहीं होता है। ठीक है। आप देखिए एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ कुछ का। अभी देखिए कुछ कंपनीज हैं, लेट मी टेक एग्जाम्पल एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल। मार्केट में सडनली कंपटीशन आ गया, 1-1.5 साल में क्या हुआ। HDFC बैंक का एग्जाम्पल, सच ए ब्यूटीफुल बैंक, उसमें देखिए क्या हुआ, पिछले 2-3 साल में कोई ज्यादा मूवमेंट आई नहीं, बिकॉज वो मर्ज हुआ, उसका जो दूसरा बिजनेस था मर्ज। सो रीजन कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन कहीं से भी आ सकता है, फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो उनकी जो प्रोग्रेस ग्रोथ में फर्क पड़ सकता है, बट दे विल नॉट, लाइक वो कहते हैं ना कि दे विल नॉट गो बैंकरप्ट, वो खत्म नहीं हो जाएंगे, दे विल बी देयर। आपका मनी शायद ग्रो ना करे। मार्केट में ऐसा कहते हैं कि 365 दिन होते हैं, शेयर्स में ग्रोथ सिर्फ 4-5-6 दिन आती है बस, या 10 दिन। उस 10 दिन में शेयर इतना भागता है कि आप मतलब आपको समझ नहीं आएगी क्या हो गया, एंड फिर वो जाकर रुक जाता है। बट उन 8-10 दिनों के अंदर वो आपको आपका पूरा रिटर्न दे देता है, कंप्लीट रिटर्न दे देता है। ये तीन टाइप के जो है आपके ये अलग अलग कैटेगरीज हो गई। अब इसमें आप इसी के बेस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स बनते हैं। तो अब जो नेचुरली अगर कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो SIP और म्यूचुअल फंड में क्या फायदा तो या फर्क है? तो SIP इज अ प्रोसेस, म्यूचुअल फंड इज अ कमोडिटी, इंस्ट्रूमेंट। इट्स इंस्ट्रूमेंट। तो आप एक म्यूचुअल फंड लीजिए, किसी भी बैंक का म्यूचुअल फंड, किसी भी AMC का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके अलग अलग बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारे पास। अगर आप सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड को मिला दें तो कुछ 1500-1600 कैटेगरीज हो जाएंगी। तो उसमें से आप सिलेक्ट करें आपके लिए क्या है। हरक्यूलिन टास्क, अगेन मैं कहता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर के पास चाहिए, है ना, या जो थोड़ा नॉलेजेबल है उससे आप पूछ सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर जो आपके मैनेज कर सकते हैं, आपको सही एडवाइस दे सकते उससे हैं। आपको डिस्कस करना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। वो आपको सब सही सवाल पूछेगा, उसके हिसाब से आपकी मनी को इन्वेस्ट कराएगा। तो आप अपना कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। SIP इज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर उसने बोला कि आप अपना सिंपल तो ये कि 30% कर दिया, 30-40% कर दिया, डिपेंडिंग ऑन SIP में बेसिकली आप एक फिक्स्ड अमाउंट जो है उसको आप दे रहे हैं हर महीने, और वो उसको किस में लगा रहा है, वो फंड में लगा रहा है आपकी, हाँ, फंड मैनेजमेंट आपसे ऑलरेडी पूछ करके उसी हिसाब से लगा दे रहा है उसमें। यस। सो यू आर नॉट वरीड कि एग्जैक्टली किस फंड को खरीद रहा है, बेच रहा है, क्या कर रहा है, वो आपसे हालांकि एक्चुअली उसका कोई रोल ही नहीं है, हिज रोल फिनिशेस एट एडवाइजरी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको कहीं से आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, यू डोंट इवन हैव टू गो टू एनीवन। सपोज आपको मुझ पे ही भरोसा है, मैंने कहा ठीक है ये 3-4 फंड से मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सपोज यू कॉन्फिडेंस ऑन मी, आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आप अपना बैंक खोलिए, नॉर्मल बैंक जो भी आपका बैंक है, उसमें जाइए, वहाँ पे लोगो होगा, उसके ऊपर लिखा होगा इन्वेस्ट। आप उसको बोलिए मैं हर महीने, वो पूछेगा आपसे आपका मंथली SIP है, क्वार्टरली है, क्या है। तो अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास रेशियो है मान लीजिए 30-30-40, 30 लार्ज कैप, 30 मिड कैप, 40 स्मॉल कैप, 100% हो गया। 20,000 रुपये उसको आप 30-30-40 में कर दीजिए। 6,000 इन मिड कैप, लार्ज कैप 6 इन मिड कैप एंड बैलेंस 8,000 इन स्मॉल कैप। अब आप उसमें से आपने नाम तो सुन ही लिए, या तो मुझसे या किसी और एक्सपर्ट से, आप उसको ढूंढिए, उसके अंदर जाइए, क्लिक करिए, यू पुट 5,000 रुपीज, अपना 6,000, बोलिए मुझे मंथली चाहिए। उसमें डेट भी पूछता है किस डेट को कटना चाहिए, आप बोलिए 15 तारीख, 20 तारीख, जो भी आपको डेट अच्छी लगती है, ऑन योर बर्थ डेट आप डाल लीजिए, अपने आप वो कटना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आपके बैंक से कटना शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं, जो लोग रिटायर हो गए हैं विद व्हाटएवर फंड्स, नॉर्मली रिटायरमेंट पर आपको ग्रेचुइटी मिलती है, आपके प्रोविडेंट फंड होते हैं, ये सब है, और कुछ एसेट्स भी होते हैं। अब उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, जो आदमी रिटायर हो चुका होता है तो उसमें 2-3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक जो फुली सेटिस्फाइड रिटायरमेंट पे है, मींस उसके फाइनेंशियल नीड्स मीट हो चुके हैं, बच्चों की शादी होगी, बच्चे सेट हो चुके हैं, उसका अपना घर है, उस पर एक गाड़ी है, उस पर हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके पास में एक मेडिकल इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल नीड्स आर जनरली मेट। उसके बाद भी उसके पास में पैसे, हैप्पी गो लकी, एंजॉय द लाइफ, दैट्स वन थिंग। प्लस इफ ही स्टिल वांट्स टू, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इस पीरियड ऑफ लाइफ में 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यू डोंट नो योर टाइम ऑफ डेथ, बीइंग हियर, यू डोंट नो दैट। दैट्स, कुछ लोग तो 90-100 साल जी जाते हैं। इफ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड करेक्टली, इफ यू डोंट हैव मनी फॉर दैट, आफ्टर रिटायरमेंट अबाउट 30 odd years, 30 ईयर तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो, आपके पास तो फिर भी पेंशन आती है,
देयर आर पीपल हु आर विदाउट पेंशन, करेक्ट। इफ हैव नॉट इन्वेस्टेड देयर मनी प्रॉपर्ली, वो तो टुवर्ड्स द फैक्ट, एंड मैं आपको इतने एग्जांपल दे सकता हूँ ऑफ सेलिब्रिटीज, इतने ज्यादा एग्जांपल दे सकता हूँ इंडिया एंड अब्रॉड, दैट पीपल हैव बिकम पॉपुलर, उनको मदद लेनी पड़ी दूसरों से Exactly. फॉर देयर बरियल. So that's why this question, because not So- everybody is getting pension. Yes, And so not everybody is invested in such a way that he will get continuously some X amount every month. यस, सो सबसे पहले जो रिटायर हो जाता है उसके पास दो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है. एक वेरी गुड मेडिकल इंश्योरेंस जो उसने पहले करा रखी होगी, बिकॉज एनी मेडिकल इंश्योरेंस व्हेन यू कम टू एज ऑफ 50-60 बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, तो वो बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है. आई एम श्योर उसने पहले करा ली, अगर नहीं कराई है तो उसको इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वन बीमारी एक बार आपको लग गई तो हॉस्पिटल का बिल 1 लाख का आएगा कि 10 लाख का आएगा वो मालूम नहीं है, कुछ नहीं पता. और एकदम से आपको जो है वो पॉपर बना देगा. सो मेडिकल इंश्योरेंस अगर नहीं है तो वो बहुत ज़रूरी है. लाइफ इंश्योरेंस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज आपका वो सब कुछ पैसा टेकन केयर ऑफ हो चुका है, किसी और को मिलेगा. तो वो टेकन केयर भी हो चुका है. यू मे इंश्योर समथिंग फॉर योर ओन वाइफ इफ शी इज अलाइव, और तो वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, तो लिटिल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, बट मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे तो अपने आप दे विल लुक आफ्टर बिकॉज दे वेल सेट. इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. सेकेंडली, यू शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी इन योर, जो आपको मिला हुआ है उसको आप करेक्ट तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि आपको मंथली रिटर्न आता रहे. चलिए, एक उसके पास फंड है वो इन्वेस्ट करने का एक वो हो गया. दूसरा जो है, एक वन टर्म विच इज नाउ पीपल आर नाउ अवेयर, SWP. सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान. ठीक है, इसके बारे में, बिकॉज दिस इज लिटिल अट्रैक्टिव फॉर दोज ऑफ दिस एज, क्योंकि उनके पास एसेट है, उसमें से वो पैसे मिलेंगे उनको जिसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ. बिल्कुल ठीक है, इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आप ऐसा करिए, अपने एसेट को मैं तो 3 पार्ट में डिवाइड, जो जनरली मैं लोगों को समझाता हूँ एक वेरी ब्रॉड एंगल पे. कोई मेरे से पर्सनल एडवाइस कहता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ब्रॉडली आप अपने पैसे को 3 में डिवाइड करिए. वन विच इज इन्वेस्टेड फॉर 10 years, वन विच इज इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड वन विच इज फॉर SWP, जो आप कल आप उसको निकाल सकते हैं. पुट ऑल योर मनी इनटू प्रॉपर म्यूचुअल फंड एडवाइस लेकर के. 10 years वाला अगर आपकी सही एडवाइस हो गई तो इन एट द रेट ऑफ 12% it will become 4 times or 5 times. It will beat the inflation and Much inflation only becomes double, ये will become 4 to 5 times. So it will keep you happy even after that. At 5 years you get the boost. और जो शुरू का लॉट होता है वो फर्स्ट 5 years के अंदर आप उसको SWP कर दीजिए, अपना आराम से एंजॉय योर लाइफ. दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ गोइंग, वेरी सिंपल वे. अब हाउ टू डू इट इज अ मैटर ऑफ लिटिल डिटेल कि मैं किस में डालूं, क्या करूं, बट द प्रोसेस जो आपने बोला, SIP हमारे अर्निंग पीरियड में होता है जब हम अर्न कर रहे होते हैं, उसके बाद में तो विड्रॉल ही होता है. करेक्ट. और आपका जो इकट्ठा मनी है उसके बाद में उसको कैसे, उसको भी आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक लमसम इन्वेस्टमेंट, या उसको भी आप सोचे कि ओके मैं मार्केट से बेस्ट निकालने के लिए मैं अपना पूरा पैसा एक डेट फंड में लगा दूंगा. एक तरीका बता रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट दी ओनली वे बट वन ऑफ द वे. डेट फंड में जनरली गिरावट नहीं आती है, आप उसमें 7-8% आपको मिल जाता है. आपने डेट मॉडरेट उस डेट फंड में लगाया तो आपका पैसा नुकसान नहीं होगा, और उस डेट फंड से आप SIP करते रहिए हर महीने. तो SIP करने का फ़ायदा ये होगा कि आप पूरे मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को आराम से झेल सकते हैं. सो योर हार्ड अर्न्ड मनी इज नॉट गोइंग डाउन एंड इट इज गेटिंग इन्वेस्टेड सिस्टमेटिकली. तो एक ये तरीका इन्वेस्टमेंट का है. दूसरा लोगों का तरीका होता है कि ओके यू कम एंड यू इन्वेस्ट द कंप्लीट मनी इन वन गो, इन्वेस्ट खत्म करो. वो इसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं लोगों को करते हुए देखता हूँ, इसलिए मेरा सवाल इसमें है कि कुछ लोगों के पास में जैसे प्रॉपर्टी है या पैसे मिले, जैसे अच्छे पैसे मिले रिटायरमेंट के बाद में, उसको उन्होंने लगा दिया प्रॉपर्टी में. नो, मेरा जो लुकआउट इसके बारे में, प्रॉपर्टी में लगा दिया मतलब मैं समझा नहीं. फ्लैट खरीदा, कोई रेजिडेंस ओहो, प्रॉपर्टी, हाँ वो बहुत, उन्होंने अपने हार्ड मनी को उसमें लगा दिया. अब वो जो प्रॉपर्टी है वो खुद उसका जो वैल्यू बढ़ेगी वही उसमें रिटर्न है मेरे हिसाब से. अदरवाइज उसका जो रेंटल रिटर्न है वो बहुत कम होता है, प्लस उस पर मेंटेनेंस चाहिए आपको, किराएदार, उसकी ऑक्यूपेंसी, बहुत सारे झमेले हैं उसमें. तो उस एज में क्या ये एडवाइस, मैं आपको सिंपल वन लाइन में बोलूंगा, आई विल नॉट एडवाइज दिस टू एनीवन. दिस इज अ लाइबिलिटी. एग्जैक्टली. आप एक घर ले रहे हैं 60 years ऑफ एज में, जिसको आप मैनेज करेंगे, वो एक लाइबिलिटी है. वो आप कभी सोच, द रिटर्न ऑन अ हाउस इज 2%.
So Rental investment 2%. It is bad investment. इट्स आई विल नॉट से बैड इन्वेस्टमेंट. कुछ लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, सर हमने एक पॉश लोकेलिटी में घर ले लिया, हमें सस्ता मिल रहा था और वो 2 साल बाद डबल हो गया, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट फॉर देम. बट कितनों के साथ ही ऐसा होता है. Difficult to manage. इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट. Good. Okay. It's not a bad investment, but there are much better investments for your age. Okay. Now, another one. बहुत से लोग जो है ये सब इन्वेस्टमेंट इन तरह की चीज़ों से डरते हैं, बहुत से लोग. उनको देखा मैंने, अच्छा पैसे निकले मिले, उसको डाल दिया एफडी में. Oh, again, हाँ. अब उसमें से रिटर्न आ रहा है, दे आर हैप्पी कि अरे इतने पैसे आ रहे हैं, हो गया. इसके बारे में आपका क्या व्यू? नहीं, ये तो मतलब दैट्स ए अप्रोच वेयर ये लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. ये डरिए मत. ये फाइनेंशियल इंडिया की हमारी बात इसी वजह से हो रही है. हाँ, क्योंकि वो तो जो स्मार्ट लोग हैं वो हर जगह कर लेते तो हैं. मैं उनको जैसे सिंपल से लोग- मैं उनको सिंपल तरीके में कहना चाहूँगा, आप प्लीज डरिए मत. इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करिए. इंडिया इज एट अ वेरी ग्रोइंग स्टेज. हमारी ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है. हमें यहाँ रुकना नहीं है. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. 5 ट्रिलियन बनेंगे. कैसे बनेंगे? जब ये हमारी जो इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस करेंगी. वी आर इनटू ऑल फील्ड्स. मैं एक कंप्लीट कर लेता हूँ इसको. तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हमारी इकोनॉमी में कोई कोलैप्स आएगा. हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, वो चलती रहेगी और इट विल कीप ग्रोइंग. यस, अप्स डाउन आएंगे. कभी हमारा हो सकता है कोई फिगर खराब हो जाए. अभी ट्रम्प पॉलिसी की वजह से थोड़ा सा देर इज ए डिस्टेबिलिटी, बट सी देयर आर एक्शंस बीइंग टेकन टू स्टेबलाइज इट. वो कब होती है स्टेबलाइज? तो अगर आप इस छोटे से पीरियड को देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे यार तो हमें 50% टैरिफ लगा दिया, मेडिसिन पे भी लगा दिया. बिल्कुल नहीं डरना है. इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट. अब मैं तो सब यंगस्टर्स को बोलता हूँ, प्लीज बिलीव इन इंडिया स्टोरी. यंगस्टर तो वाइज हैं, वो तो इवन फॉर द ओल्ड पीपल ऑल्सो. डरना नहीं है. अब आप ओल्ड किस हिसाब से हो गए? ओल्ड तो जस्ट नंबर है. आपको थोड़ी पता है कि आप आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कब तक आप जिएंगे, आपको पता नहीं है. तो मतलब कभी कभी तो लगता है कि जो जल्दी चले गए उनको इस प्रॉब्लम से झेलना नहीं पड़ा. बट जो रुक गए, मान लीजिए 80-90 ईयर्स में, बहुत सारे हमारे दोस्त के पेरेंट्स हैं, दोस्त आर लिविंग टिल 90. अगर उन्होंने अपना ठीक से इन्वेस्टमेंट नहीं किया या उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो दे आर बीइंग डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन. आजकल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जी सकते हैं. और मैं कह रहा हूँ आप फाइनेंशियल इनहेरिटेंस कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए. आई एम प्लानिंग दैट कि व्हेन आई गो आई विल इनहेरिट देम सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मनी विच दे विल एंजॉय. ये उनको बताना भी नहीं है. अगर मेरे बच्चे चाहे सुन लेंगे इसके ऊपर, अदरवाइज दे विल स्टॉप वर्किंग. बट दिस इज सो वी आर सो एम्पावर्ड टुडे. तो आजकल व्हेन आई हैव इन्फ्लुएंस्ड माय मेड एट होम, माय ड्राइवर, एवरीबडी हु इज अराउंड मी टू इन्वेस्ट. आप 100 रुपये इन्वेस्ट करिए, आप 500 रुपये इन्वेस्ट करिए. एंड लेट मी टेल यू, पीपल हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ. साथ रहते रहते उनको समझ में आया. Every status of people can do investment in Indian market. Our market is so beautiful and they should do bindas, no worry at all. आप आराम से करिए. और आपको किसने, आप अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले चलूँ, आज से कुछ से 1700 या 1800 की हिस्ट्री में ले, बैंक कैसे आए? पहले लोग, आपने भी सुना होगा अगर जो विलेज बैकग्राउंड के हैं, कि आपके दादा या परदादा अपने घर का सोना कहाँ रखते थे? गड्ढा खोद के घर के अंदर, तकिए के नीचे, मटकी में. एक बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी. और पुराने ज़माने के, पता नहीं, जो पीपल हु हैव नॉट नोन द विलेज लाइफ, लेकिन जो विलेज लाइफ की स्टोरी सुनी होगी, जिनके दादा परदादा रहे होंगे, पहले डाकू लोग सेंध लगाते थे. व्हाट इज सेंध लगाना? वो मट्टी की दीवार होती थी, उसको उनको पता होता था कहाँ पर सोना गड़ा हुआ है. वो सेंध लगा करके वही मटकी निकाल के ले आते थे, किसी को पता भी नहीं लगता था. उसको प्रोटेक्शन, ये इंडिया में था. और इंडिया में क्या, अब्रॉड भी ऐसे ही था. तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को सेफ जगह रखने के लिए एक प्रोपोजिशन ढूंढा. और कुछ बिजनेसमैन आए कि आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे दीजिए, मैं सेफ्टी दूंगा और मैं उसको सेफ रखूंगा. केजेस बनाए और सेफ पिंजरे बनाए. और उसके लिए वो पैसे लेते थे कि आप अपना 1 लाख रुपए भी, मतलब प्रॉपर्टी भी दीजिए, एसेट इन फिजिकल फॉर्म, और आप मुझे पैसा भी दीजिए उसको बचाने के लिए. वहां से बैंक्स का एवोल्यूशन हुआ. और ग्रेजुअली एक टाइम ऐसा आया कि इतने लोग हो गए उसको बचाने वाले, कंपटीशन हो गया. अब जब बैंक्स, इन द फॉर्मल वे बैंक्स केम, दे सेड इनका पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, तो व्हाई शुड आई नॉट रोटेट दिस मनी?
पैसा ही से बिजनेस बनता है। तो जब उन्होंने कहा जितना ज़्यादा मेरे पास पैसा होगा तो मैं उसको रोटेट करूंगा, तो अब उन्होंने पैसा अट्रैक्ट करना शुरू किया। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, भाई आप अपना पैसा हमें दीजिए, हम देंगे ज़्यादा, आप आपको ज़्यादा देंगे। तो पहले इन 50s एंड 60s जब हमारे बैंक एस्टैब्लिश हो रहे थे तो लोग डर रहे थे बैंक में पैसा देने के लिए। ये मैंने अपने दादा से कहानी सुनी है, वो कहते थे नहीं हम क्यों दें आपको पैसा, क्या भरोसा है कि आप हमें पैसा देंगे। इट इज द सेम फियर विच सम पीपल हैव फ्रॉम द मार्केट, यार लगा दिया पता नहीं क्या होगा, ये पता नहीं क्या होगा का सिचुएशन खत्म हो चुकी है। बहुत एजुकेशन अवेलेबल है, अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे बैंक्स में आज आपको भरोसा है, आपको इसमें भी भरोसा होगा। जस्ट टू गिव यू फैक्ट्स, मैं यूएस का फैक्ट लेता हूँ। यूएस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन्वेस्ट, वेरी फ्यू पीपल कीप इन बैंक्स। इन इंडिया, हाँ, if I go by statistics again, majority of the people put money in FD. Very few invest. that's what I was talking about. Very few invest. Why? Because we feel insecure. देखिए, कुल मिलाकर के हमारा आज का डिस्कशन जो था इसी पर था, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर था। एक्चुअली मैं इलिटरेट वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता था, मैं ये कह रहा था कि वी हैव लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, और जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम इन्वेस्टमेंट को, सेविंग को हम बड़ा इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। सेविंग इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज़ सेविंग। और जो इन्वेस्टमेंट है उसके इतने तरीके हैं। एक्चुअली आज के पॉडकास्ट में हमने सिर्फ बहुत कम हम कवर कर नहीं, हमने जनरल वे में इसको कवर किया है। इसमें से एक एक चीज़ अपने आप में एक एक पॉडकास्ट हम आपकी सीरीज ले जा सकते हैं इसको आप, जो बिकॉज़ एवरीथिंग इज सो इंटरेस्टिंग टू टॉक। यस, एंड सिंस आई जस्ट टॉक ओपनली, मेरा कोई बैगेज नहीं है, कोई I have nothing to lose or gain. Yes. So I just give an advice which everybody should understand. And उनको समझ में आए, ताकि वो, मैं चाहता हूँ कि लोग इसको समझें, because more people invest, more our companies will grow, हमारे देश की तरक्की होगी। That's one of my motto. When I go and give motivation lectures, I give motivation lectures to students to grow, and also financial motivation for people to be financially very very sound, ताकि आगे चल करके वो ग्रो करें और उससे खुद को उनको खुशी महसूस हो। एंड वेरी हैप्पी थिंग जो इंडिया में हो रही है, अगर आप सिर्फ डीमैट अकाउंट के नंबर्स देखें, तो मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहा था लास्ट ईयर, मेरी एक प्रेजेंटेशन थी उसके लिए, तो मेरे वहाँ पे मुझे मिला कि हमारे डीमैट अकाउंट 5 करोड़ से 11 करोड़ हो गए थे इन सम पीरियड, रिसेंट पीरियड। ये पिछले साल की स्टैटिस्टिक्स है। अभी मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, बट दैट फिगर इज ऑलमोस्ट डबल। हम शायद 18-20 करोड़ के डीमैट अकाउंट पे हो जाए, गूगल करें आपको मिल जाएगा। अब ये सोचिए कि पिछले साल का प्रेजेंटेशन मेरा, वहां से अभी तक में 7-8 करोड़ डीमैट अकाउंट जुड़े हैं। आप पेस ऑफ एडिंग डीमैट अकाउंट इसलिए बोल रहा हूँ, उसी से आपकी सब इन्वेस्टमेंट होगी। डीमैट अकाउंट होना तो प्राइमरी थिंग, जैसे बैंक अकाउंट होता है सबको, डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो ये इतनी फास्ट पेस में ये आपके डीमैट अकाउंट बने हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है? वी आर 150 करोड़ कंट्री, उसमें से हम 40-50 करोड़ को निकाल दें जो कि ओल्ड पीपल है, यंग है, और थोड़ा निकाल दें, 80 करोड़ तो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है जो 20 साल से लेकर 60 साल के बीच में। एक रफ फिगर दे रहा हूं मैं, सिर्फ 20 करोड़ के पास एक, अगर मैं रफ फिगर लूं, डीमैट अकाउंट 60 करोड़ ने और डीमैट अकाउंट लेना है। इट्स एन एक्सप्लोजन वेटिंग टू हैपन, और ये होगा। जैसे बैंक शुरू में आए, 10, 15, 20 साल लगे, और फिर मेरे ख्याल से समवेयर इन 1970s बैंक्स को नेशनलाइज बैंक कर दिया गया। वी ऑलरेडी हैव ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एग्जैक्टली। सो ये जब सोचिए, जब ये 20 करोड़ या 25 करोड़ का फिगर जाकर 50 करोड़ पहुंचेगा, तो सोचिए मार्केट में कितनी बड़ी एक्टिविटी होगी। तो डरना किस बात से? मुझे तो नहीं, तो मैं डरता था और आप डर के उस पार चले गए। हाँ, बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट अपना बंद कर दिया था कि भाई ये तो ऐसे डूब जाता है। सो I was financially, now I'll say I was financially illiterate, and I remained to do that for quite some time, and you took up this as a challenge, and it was pleasure talking to you on this subject. Yeah, and जैसा कि मैंने बताया कि मेरा रिटायरमेंट के बाद एक ही मकसद था कि जो हमारे साथियों के साथ में जो उनको अवेलेबल नहीं था, एटलीस्ट टुडेज जनरेशन है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ लोग बहुत प्यार से पूछते हैं क्या है, कैसा है, एंड आई एंजॉय स्टडिंग इट। तो मैं उनको, बस मेरा एम है कि उनको ये लिटरेसी, ये बातें पहुंचती रहें, सो दे बिकम मोर एजुकेटेड। एंड आई ऑलवेज टेल देम, आप सुनिए, समझिए, सीखिए,
बट हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर, उसके पास जाइए, एडवाइस लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच जनरल अहमद। इनफैक्ट बात तो हमारी ख़त्म नहीं हो पा रही है, लेकिन इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मोर पॉडकास्ट विद यू, सर मेकिंग पीपल मोर एंड मोर लिटरेट ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जैसा बताया। ओके, प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।